Activity. Count the number of boys and girls studying in your school or in your neighboring co-education school. Ask the school administration to provide you with the data of boys and girls studying in the classroom. Ask the school administration to provide your school with the data of boys and girls studying in the classroom, studying the difference, if any, and explain for reason in the classroom. As stated in the budget document of Union State Governments Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.8%. In percentage of GDP has declined to 2.8% in 2020 to 21 BE. Literary rates have increased from 18% in 1951 to 85% in 2018. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights. Property, however, a, a wide difference is noticed across different sections of the population. Literacy among males in nearby nearly 16.1% higher than females, and it is about 14.2% higher in urban areas as compared to rural areas. As per 2011 census, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. The primary school the primary school system first to fifth has expanded to over 7,78,842 lakh in 2019 to 20. Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Samagra Shiksha is a significant step for the school education sector, extending from preschool to class 12th with the broader goal of improving school effect, uh, effectiveness, measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. The scheme envisages the school as the county con- continuum continuum from the school as the continuum from preschool, primary, middle to secondary levels and attempts to ensure inclusive and equitable quality education from preschool to secondary stage in accordance with the sustainable development goals. Midday meal scheme has been implemented to
encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to literally population of India. The gross enrollment ratio ER in higher education in the age group of 18 to 23 years is 27% in 2020 to 21, which would be broadly in line with world average. The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocalization, and networking on the use of information technology. There is also focus on distance education, convergence of formal, non-formal distance, and IT education institution. Over the past 60 years, there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specified areas. Let us read the table to see the increase in the number of college universities, enrollment of students, and requirement of teachers from 1951 to 2019 to 20. अपने विद्यालय या अपने पड़ोस के शिक्षा शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासक से कहें कि वह आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराएं। अगर उनमें कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करें और कक्षा के उसका कारण समझाएं। मैं घटकर 2.8% बताया गया है। ऐसी साक्षरता दर 1951 के 18%, मैं बोला 91 के 88% से बढ़कर 2018 में 85% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 65% ही है। वर्ष 2019-20 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 7,78,842 लाख से भी अधिक गांव में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। समग्र शिक्षा यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका विस्तार प्री स्कूल से कक्षा 12 तक है, जिसका व्यापक लक्ष्य स्कूली शिक्षा के लिए समान के लिए समान अवसरों को और समान शिक्षण परिणामों के संदर्भ में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार करना है। इस योजना में स्कूल को प्री स्कूल, प्राथमिक, मिडिल से
मिडिल और माध्यमिक स्तर तक के एक सतत प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित किया गया है तथा इसका उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अनुरूप प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनके पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन के योजना कार्य विनीत की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती सीट गीली फट रही है वापस पता है विनायक बंद कर लो यार पॉज कर दो दे भाई वो दोपहर के भोजन की योजना दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन से 27% तक 2020-21 में रही। यह विश्व औसतन प्रतिशत से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ तथा दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों को अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या वृद्धि, छात्रों का नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देखें। उन्नीस देखिए, अब ये जो है साल बता रहा है ईयर 1950 से लेकर 1951 के बीच में नंबर्स ऑफ कॉलेजेस मीन्स महाविद्यालयों की संख्या 1950 और 51 में देखिए 750 कॉलेज थे और यूनिवर्सिटीज 30 थी। स्टूडेंट 2,63,000 थे। टीचर्स अब जो अध्यापक थे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वो थे 2400। फिर 1990 और 91 में देखिए तो कॉलेजों की संख्या हुई 750 से 7,346, यूनिवर्सिटीज़ हुई 170 और वो विद्यार्थी हुए 49,25,000 और टीचर्स हो गए 2,72,000। फिर 1998 और 1999 में 11,089 कॉलेज, 238 यूनिवर्सिटीज़, 74,17,000 बच्चे मीन्स विद्यार्थी और 3,42,000 टीचर्स। इस प्रकार से ये रेशियो है।